વચનોમાં કળશ ટીકા અને વચનામૃત સ્વાધ્યાય ચાલે છે. આપણે જે અહીંયા વિષય ચાલે છે એ એને અનુરૂપ જ છે. એમાં જે કાંઈ વાત આવે છે એ પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી આગમના સારભૂત અધ્યાત્મ કાઢીને એમાંથી આપણને બતાવે છે. અને આપણે પણ જે કંઈ આગમમાં ચર્ચાઓ આવે છે આચાર્ય ભગવાન દ્વારા નિર્વિકલ્પ સાધક જીવો દ્વારા જે કાંઈ સમયસાર શાસ્ત્રમાં કે કળશ ટીકામાં જે ચર્ચાઓ આવે છે તે આગમના સારભૂત અધ્યાત્મ શું છે અને એ આગમના સારભૂત અધ્યાત્મ એમાંથી કાઢવાથી ખરેખર નિજ શુદ્ધ આત્મદેવ છે એ ખ્યાલમાં આવવા માંડે છે. એવી જે આ પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીના નિમિત્તે એક પ્રણાલિકા જે આપણી ચાલી છે કે આચાર્ય ભગવાનના શાસ્ત્રો અને જ્ઞાની પુરુષોના જે વચનો હોય એમાંથી જે એમણે કહેલા રહસ્યો હોય તે રહસ્યોને કેવી રીતે સમજવા અને એમાંથી આપણા પ્રયોજનની સિદ્ધિ કેવી રીતે થાય, આપણું નિજ શુદ્ધ સ્વરૂપ છે એ ત્વરિતમાં ત્વરિત આપણને ખ્યાલમાં કેવી રીતે આવી જાય અને એ ખ્યાલમાં લેવાનો પુરુષાર્થ જ આપણે કરવાનો છે. સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન કે સમ્યક ચારિત્રની પર્યાયને કોઈ લઈ આવી શકતું નથી, કોઈ નજીક કરી શકતું નથી કે કોઈ પ્રગટ પણ કરી શકતું. તે પોતપોતાની જન્મ ક્ષણે પોતાના સ્વકાળે પોતાની કાળલબ્ધિ અનુસાર પોતાની ઉપાદાનની સ્વશક્તિથી અને પોતાની પર્યાયની શક્તિરૂપ પરિણમનથી ખરેખર પ્રગટ થાય છે. એટલે એ તરફનો પુરુષાર્થ તો કાંઈ જીવ ધારે તો પણ એ કાંઈ આગળ વધારી શકતો નથી. પણ એટલું જરૂર છે કે એ પોતાના સ્વભાવનો નિર્ણય કરવાનો પુરુષાર્થ અવશ્ય કરી શકે છે. અને એ નિર્ણય કરવાના પુરુષાર્થથી, એના બળથી અને નિર્ણયની દ્રઢતાથી, નિર્ણયની મક્કમતાથી શુદ્ધાત્માનું સ્વરૂપ એના જ્ઞાન શ્રદ્ધાનમાં એવું બેસી જાય છે કે એના જ્ઞાન શ્રદ્ધાન ક્યારેય ત્યાંથી વિચલિત થતા નથી. અને એ વિચલિત થતા નથી તો એ વિચલિત ન થાય અને એમાં ને એમાં એ સ્વરૂપે જ રહેવા માંડે તો એ જ સમયે એની સ્વકાળરૂપ લબ્ધિ પામતા સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રાણી મોક્ષ માર્ગનો જન્મ થઈ જાય છે. કોઈ પર્યાયને ફેરવવાની શક્તિ કોઈ ઇન્દ્ર, નરેન્દ્ર કે જીનેન્દ્રમાં પણ નથી. એવી જ રીતે એ પણ પોતાની પર્યાયને ફેરવી શકતા નથી. એનો આપણો શુદ્ધ આત્મા પણ આપણી પર્યાયને ફેરવવા માટે સમર્થ નથી. કારણ કે એ કોઈ પણ પર્યાયનો કરતા નથી. સ્વભાવથી જ પોતાનો શુદ્ધ આત્મા એ અકર્તા સ્વભાવે રહી ગયો છે, અકારણ સ્વભાવે રહી ગયો છે. કદી પણ કરતા બન્યો નથી, કદી પણ કોઈ પર્યાયનું કારણ બનતો નથી. પર્યાય જ્યારે એમ કે હું જ્ઞાયક છું ત્યારે એમ કહેવાય કે જ્ઞાયક એનું કારણ બન્યો. બાકી જ્ઞાયક પોતે ક્યારેય પણ કોઈ પર્યાયનું કારણ બનતો નથી. જો એક પર્યાયનું કારણ તમે એને બનાવવાનો એની ઉપર આરોપ લગાવો તો સમ્યક દર્શનની પર્યાયનું કારણ તો કયો તો પૂર્વની પર્યાયમાં મિથ્યાત્વ હતું એનું પણ કારણ ભગવાન આત્મા થઈ જાય. માટે કદી પણ જ્ઞાયક દેવ, શુદ્ધ આત્મા, ચૈતન્ય પરમાત્મા, અખંડ દેવાદી દેવ જે નિજ સ્વરૂપે બિરાજમાન છે એ કદી પણ કોઈ પરિણામનો કરતા નથી થતો. પરિણામ સ્વયંકૃત છે, પર્યાય પર્યાયકૃત છે. પર્યાય નથી પરકૃત કે પર્યાય ખરેખર નથી સ્વકૃત. પર્યાય માત્ર પર્યાયકૃત છે. માટે એના ઉપર કોઈ એને ફેરવવાનો પ્રયાસ કરે, એને નજીક લઈ આવવાનો પ્રયાસ કરે તો એ ખરેખર શક્ય નથી. પણ એટલું છે કે દ્રવ્ય પર્યાયનો નિર્ણય એના જ્ઞાનમાં યથાર્થપણે હોવો અત્યંત જરૂરી છે. જ્યાં સુધી દ્રવ્યનો એમ થાય કે મને નિર્ણય થયો છે પણ જો પર્યાયનો નિર્ણય ન હોય તો પણ એ નિર્ણય બરાબર નથી. અને માત્ર પર્યાયનો નિર્ણય હોય અને દ્રવ્યનો નિર્ણય ન હોય તો પણ એ નિર્ણય બરાબર નથી. નિર્ણય દ્રવ્ય પર્યાય સ્વરૂપ આખી પ્રમાણભૂત વસ્તુ છે એનો પણ હોવો જોઈએ
એમાંથી ભેદ પાડો તો પર્યાયનો નિર્ણય પણ હોવો જોઈએ અને એના ભેદમાં બીજું દ્રવ્ય છે એનો પણ નિર્ણય એને હોવો જ જોઈએ. નહીતર શું થાય કે ક્યાંક ને ક્યાંક જો પર્યાયનો પણ નિર્ણય ન હોય, ખરેખર તો દ્રવ્યનો નિર્ણય હોય અને પર્યાયનો નિર્ણય હોય જ, પણ દ્રવ્યનો નિર્ણય થઈ ગયો છે એવી ભ્રમણા ચાલતી હોય અને પર્યાય ઉપર દ્વેષ ચાલતો હોય અને પર્યાયનો નિર્ણય કરવાની શક્તિ પ્રગટ ન થઈ હોય તો એમ થાય કે પર્યાયનો નિર્ણય એને ન થયો હોય તો પર્યાય ગમે તેમ પરિણમે તો એનો એવી રીતે કંઈ સ્વકાળ નથી આવી જતો સમ્યક દર્શન. એના સમ્યક દર્શનના સ્વકાળ માટે પણ એના દ્રવ્યના નિર્ણયનો પુરુષાર્થ યથાર્થપણે અત્યંત જરૂરી ને આવશ્યક છે. અને એવો જેને નિર્ણય દ્રવ્યના સ્વભાવનો હોય છે એને યથાર્થ નિર્ણય જેને દ્રવ્યનો હોય એને અવશ્ય પર્યાયનો નિર્ણય હોય ને હોય જ. એટલે આ આખું જે જૈન દર્શન છે, આખું જૈન દર્શનનું આગમ છે અને એ આગમના સારભૂત જે અધ્યાત્મ છે એમાં નિર્ણયની અત્યંત કિંમત છે, ખૂબ કિંમત છે. કોઈ પણ સમયે જો એને નિર્ણય થઈ જાય છે એક વખત તો એ નિર્ણય જ એને દ્રઢ કરવાનો હોય છે. બીજું કાંઈ તો જીવ કરી નથી શકતો, પર્યાયને ફેરવી નથી શકતો. એટલે એ નિર્ણય પેલા પોતાના પુરુષાર્થથી કરી શકે છે અને એ નિર્ણય કરીને નિર્ણયની દ્રઢતા કરી શકે છે અને નિર્ણયની દ્રઢતા એ જ ખરેખર સમ્યક દર્શનનું નિમિત્તપણું છે. જ્યાં સુધી જ્ઞાનમાં યથાર્થ નિર્ણય જીવને દ્રવ્ય પર્યાય સ્વરૂપ વસ્તુનો એટલે કે પ્રમાણભૂત વસ્તુનો, એમાંથી પ્રમાણભૂતમાંથી પર્યાયનો નિર્ણય અને એમાંથી દ્રવ્યનો નિર્ણય, એવો સ્વતંત્ર દ્રવ્યનો નિર્ણય, સ્વતંત્ર પર્યાયનો નિર્ણય અને દ્રવ્ય પર્યાય સ્વરૂપ આખી વસ્તુ છે એનો નિર્ણય, એવું જો યથાર્થપણું એના જ્ઞાનમાં નિર્ણયનું જ્યાં સુધી નથી આવતું ત્યાં સુધી ક્યાંક ને ક્યાંક વિકલ્પમાં એકત્વ બુદ્ધિ કે કર્તા બુદ્ધિ કે જ્ઞાતા બુદ્ધિ એની ચાલ્યા જ કરે છે. અને એ ચાલતી હોવાને કારણે એની સમજણ યથાર્થ એ સંબંધી ન હોવાને કારણે એને મિથ્યાત્વનો જે કસાય છે એ ટળતો નથી. અનાદિના ઘોર સંસારનું કારણ મૂળ મિથ્યાત્વ છે. ગુરુદેવે 45 વર્ષ સુધી મિથ્યાત્વ કેમ જાય એનો જ ઉપદેશ આપ્યો છે. એ મિથ્યાત્વ જ્યાં સુધી જીવતું છે ત્યાં સુધી એના એક સમયના પર્યાયમાં મિથ્યાત્વ કાર્ય સંસાર રૂપે કરી રહ્યું છે ત્યાં સુધી એને સંસાર ચાલુ જ છે. માટે એવો જે સંસાર એનો અનાદિનો ચાલુ છે એ એક સમયની પોતાની પર્યાયમાં છે. ભૂતગલમાં સંસાર નથી, ત્રિકાળી દ્રવ્યમાં સંસાર નથી, પણ પોતાની એક સમયની એના સ્વકાળે પ્રગટ થતી જે પર્યાય છે એમાં મિથ્યાત્વ અનાદિથી સમય કરીને અનાદિનું ચાલ્યું આવે છે. હવે એ મિથ્યાત્વ કેમ જાતું નથી, એ મિથ્યાત્વ કેમ ગળતું નથી ગળતું એટલે ટળતું નથી, તો એનું કારણ શું છે એ આપણે પુરુષાર્થપૂર્વક નિર્ણય કરવો પડે. અને એ નિર્ણય જ્યારે એનો થાય અને એ નિર્ણય આગળ વધે, એ નિર્ણય દ્રઢતર થાય ને દ્રઢતમ થાય ત્યારે એ મિથ્યાત્વ છે ને ગળીને ટળવાનો સ્વકાળ એનો આવે છે. ત્યાર પહેલા જો નિર્ણયની ભૂમિકા જીવને ન આવે, નિર્ણયનું કામ એટલે કે યથાર્થ નિર્ણયની ભૂમિકાનું કામ છે. આમાં સુગાનીજીએ એના પત્રોમાં અને એના બોલોમાં લખ્યું છે કે જ્યાં સુધી જીવને યથાર્થ નિર્ણય નથી થતો ત્યાં સુધી પાકા નિર્ણયની તો ચર્ચા જ નથી. યથાર્થ નિર્ણય ઉપર એને ખૂબ વજન આપ્યું છે. પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી પણ યથાર્થ નિર્ણય ઉપર વજન વારંવાર આપતા હોય છે અને 17-18 ગાથામાં પણ કીધું છે કે પહેલામાં પહેલો પ્રથમ આત્માનો નિર્ણય કર, પ્રથમ આત્માને જાણ અને જાણેલાનું જ શ્રદ્ધાન હોય છે. એવું 17-18 ગાથામાં આચાર્ય ભગવાને જે વાક્ય મૂક્યું છે તો એનાથી એ સિદ્ધ થાય છે કે જ્યાં સુધી જીવ યથાર્થ નિર્ણયની ભૂમિકામાં નથી આવતો, નિર્ણયનું બળ એને અંદરથી નથી આવતું, નિર્ણય એના સ્વભાવનો જે દ્રવ્ય સ્વભાવને જે પર્યાય સ્વભાવ જે રીતે છે એમ જ્યાં સુધી નથી થતો ત્યાં સુધી ક્યાંક ને ક્યાંક પર્યાયમાં એકત્વ બુદ્ધિ ચાલે છે અથવા તો પરમાં એકત્વ બુદ્ધિ ચાલે છે. એ એકત્વ મમત્વ, કર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વ, કારણત્વ સ્વામિત્વ અને જ્ઞાતૃત્વ, આવા 7 દોષ એની પર્યાયમાં અનાદિથી ચાલ્યા કરે છે. અને એ 7 દોષ જે છે એ 7 દોષને ટાળવા માટે એક જ એનું કર્તવ્ય છે કે એ પ્રથમ પોતાના શુદ્ધાત્માનો નિર્ણય કરે. પર્યાયનો નિર્ણય તો એને થઈ ગયો, હવે એ શુદ્ધાત્માના નિર્ણય ઉપર આવે. પર્યાયને એને જાણી લીધી, પર્યાય સત્કારકથી થાય છે, પર્યાય નૈમિતિક પણ છે
પર્યાયમાં પોતાનું ક્ષણિક ઉપાદાન પણ છે, એ જ સમયે પાછી પર્યાય નૈમિતિકપણે પણ છે, બાહ્યમાં નિમિત્ત પણ છે, અહીંયા નૈમિતિકપણું પણ એના સ્વકાળે પ્રગટે છે, અને એ જ સમયે એને એના સત્કારકથી જોવો તો એ પોતાનું પર્યાયનું પોતાનું સ્વયં ક્ષણિક ઉપાદાન છે. એને કોઈ નિમિત્તની અપેક્ષા નથી, કોઈ દ્રવ્યની અપેક્ષા નથી. દ્રવ્યથી પર્યાય છૂટી ગઈ માટે એ પર્યાયમાં મિથ્યા તો રાગ દ્વેષ ને અજ્ઞાન આવ્યા એવું નથી. આહારમાં દર્શન મોહનો કે ચારિત્ર મોહનો કે જ્ઞાનાવરણીનો ઉદય છે માટે અહીંયા અજ્ઞાન રૂપ રાગદ્વેષ રૂપ કે મિથ્યાત્વના ભાવ થયા એવી નથી. એનું નામ પર્યાયને પોતાના સ્વતંત્ર સત્કારકથી ક્ષણિક ઉપાદાનથી એને એની ક્રમબદ્ધમાં જોઈ, એના સત્કારકથી જોઈ, એને થવા યોગ્ય જોઈ, એની જન્મક્ષણે જોઈ, જે થવાની હતી એમ જ થઈ છે એમ જોઈ, અને એ સમયે એવું જોઈ ત્યારે પણ એ જ સમયે એ જ પર્યાય નૈમિતિકપણે પણ છે એવું પણ એને જ્ઞાન હોવું ને હોવું જોઈએ કે નૈમિતિક પણ છે. નૈમિતિક ન હોય અને જો એકલો ક્ષણિક ઉપાદાનથી જોવે તો રાગ ક્યાં કરે તો ભલે થતો રાગ, એમ નામ તો ક્ષણિક ઉપાદાન છે. તો એવું જીનેન્દ્ર ભગવાનનું કે આચાર્યોનું કથન નથી. માટે આ જે નિર્ણયની ભૂમિકા છે એ એટલી બધી અગત્યની અને એટલી બધી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે જ્યાં સુધી એ નિર્ણયની ભૂમિકામાં નથી આવતો ત્યાં સુધી એનું નિર્ણયાત્મક જે જ્ઞાન છે એ આગળ વધી જ નથી શકતું. અને એ જે નિર્ણયની ભૂમિકા એને આવી ગઈ, પર્યાયનું અને દ્રવ્યનું યથાર્થ સ્વરૂપ એને જાણી લીધું, જે રીતે છે એ રીતે જાણી લીધું, જેમ છે એમ જાણી લીધું. આચાર્ય ભગવાને કીધું, પૂજ્ય ગુરુદેવે કીધું, બેનશ્રી કહી ગયા, એમ અનેક જ્ઞાનીઓએ આ વાત કરી છે. એ રીતે એને એનું સ્વરૂપ જાણ્યું. એમ પોતાની મતિ કલ્પનાથી નહીં, જ્ઞાનીઓ સાથે એની વાત મળવી જોઈએ. જો જ્ઞાનીઓ સાથે એ નિર્ણય કરવા બેસે ત્યારે પણ એની વાત જ્ઞાનીઓ સાથે જો એ ન મળતી હોય એના નિર્ણયમાં તો સમજી લેવું કે ક્યાંક ને ક્યાંક તફાવત છે. તો આપણે જ્ઞાનીને એકદમ માથા ઉપર રાખી અને એકદમ એની આજ્ઞા અનુસાર જો આપણે નિર્ણય કરીએ તો આપણો નિર્ણય આગળ વધી, પરિપક્વ થઈ, દ્રઢતમ થઈ અને એ નિર્ણયની ભૂમિકામાં એવી જબરજસ્ત ક્રાંતિ આવે કે એ નિર્ણય ક્યારેય ફરે નહીં. એ અપર નિર્ણય હોય, હંમેશા નિમિત્તાધીન નિર્ણય છે, એ નિયમથી ફરતો હોય છે. બરાબર. એક નિમિત્ત આવે તો એ નિમિત્ત અનુસાર નિર્ણય થઈ જાય, પછી બીજું નિમિત્ત આવે તો એ નિમિત્ત અનુસાર નિર્ણય થાય, ત્રીજું નિમિત્ત આવે તો એ નિમિત્ત અનુસાર નિર્ણય થાય. એનો મતલબ એમ છે કે જીવે સ્વતંત્રપણે વિચાર નથી કર્યો. જ્યાં સુધી जब तक वो स्वतंत्रपने विचार नहीं करेगा, जब तक उसकी सोच में, उसके ज्ञान में स्वतंत्र निर्णय नहीं आएगा, निमित्ताधीन निर्णय जब तक चलेगा तब तक क्या होगा कि जितना 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 निमित्त आएगा उतना 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 उसका अभिप्राय फिरेगा. वो अभिप्राय फिरेगा तो मिथ्यात्व दृढ़ होगा. मिथ्यात्व चलता ही रहेगा, मिथ्यात्व जाएगा ही नहीं. और ये पुरुष ने जो उपदेश दिया है 45 साल तक कि मिथ्यात्व कैसे जाए, मिथ्यात्व एक समय की पर्याय में है, वो एक समय में चला जाता है. वो कैसे चला जाए, वो क्यों नहीं जा रहा है, वो क्यों जीवंत रहता है, वो कैसे निकल जाए और कैसे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्राणी मोक्ष मार्ग की उसकी पर्याय में स्वयं उपलब्धि हो जाए. उसकी जो पूज्य गुरुदेव श्री ने जो घोषणा करके द्रव्य गुण पर्याय, स्वभाव विभाव, निमित्त उपादान, निश्चय व्यवहार, क्रमबद्ध कारण सूत्र पर्याय, जो जो विषय पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी में आया है, सत्कारक से परिणमन, क्षणिक उपादान, त्रिकारी उपादान, माने कि इतना उसने स्पष्टीकरण किया है कि एक 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 विषय को अपन सोचे न तो उसमें इतना इतना माल भरा है. जैसे 5 समवाय का प्रकरण हो, 5 लब्धि का प्रकरण हो, 5 भाव का प्रकरण हो, माने कि कोई भी प्रकरण को अपन देखे तो इसमें इतनी इतनी गहराई है. कोई एक विषय पे ही निर्धार नहीं होता है. इसमें बहुत विषय है जैन दर्शन में, मगर बहुत विषय गुरुदेव की वाणी में आता है. वो समझकर अपना स्वभाव का निर्णय करना और उसमें द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव दोनों स्वभाव का निर्णय अपने ज्ञान में जब आता है एकदम सहजता से वो आ जाता है. पहले पुरुषार्थ से आता है, बाद में सहज हो जाता है. ये बराबर है, यही है. ऐसा ही परिणमन है पर्याय का. मेरा द्रव्य स्वभाव तो ऐसा ही रह गया है,
इससे परिणमन चलता है, तभी मेरा द्रव्य स्वभाव में तो कुछ नहीं हुआ है, वो तो ऐसा का ऐसा, ऐसा का ऐसा, ऐसा का ऐसा ही रह गया है। पर्याय में परिणमन होता है, पर्याय में विपरीतता चलती है, पर्याय में मिथ्या दर्शन चलता है, पर्याय बहिर्लक्षी चलती है। उसी समय भी मेरा नायक भाव है, मेरा ध्रुव आत्मा है, मेरा चैतन्य परमात्मा है, मेरा त्रिकाली तत्व है, मेरा अभेद तत्व है, वो मेरा सूक्ष्म तत्व है, वो ऐसे न ऐसे, ऐसा न ऐसा, ऐसा न ऐसा रह गया है। ऐसा निर्णय उसके ज्ञान में आ जाता है। और वो निर्णय की इतनी खूबी है कि जब वो उसको निर्णय हो जाता है ना, तो वो निर्बोध हो जाता है। इतना निर्बोध हो जाता है निर्णय से कि उसको पता चल गया है निर्णय में कि ये पर्याय का परिणमन है, होने योग होता है। ये द्रव्य है, वो तो शुद्ध है, वो तो उससे आया ही नहीं है, वो तो कभी आने वाला भी नहीं है, वो तो ऐसा का ऐसा ही है, वो तो ध्रुव है, वो तो चैतन्य है, वो तो त्रिकाल परमात्मा है, वो तो अखंड है, वो तो नायक देव है, वो तो ऐसा का ऐसा ही है। उसको ऐसे पता चल जाता है। तो वो निर्णय में क्या होता है कि वो निर्णय एक बार हुआ, वो निर्णय एकदम आगे बढ़ता रहता है। और वो कितने भी परिणाम की विचित्रता भी आ जावे ना, तो भी निर्णय में खलेल नहीं आती है उसको। निर्णय दूर तो नहीं हो जाता है, मगर निर्णय में खलेल भी नहीं पड़ती है। ऐसा आत्मा से जीव का निर्णय होता है। और वो निर्णय जब उसको आता है, तब से उसकी स्वयं की परिणति फिरने लगती है। उसको पता चलता है, ऐसा उसको सहज में पता चल जाता है कि अभी मेरा ज्ञान का परिणमन है ना, कुछ अलग टाइप का हो गया है। वो निर्णय की खूबी है, वो निर्णय की कमाल है, वो उसको खुद को पता चल जाता है। निर्णय का कोई लक्षण नहीं है, वो उसको खुद को पता चलता है, वही उसका लक्षण बोला जाता है। अनुभूति का तो लक्षण है, उसकी तो मोर छाप लगती है, उसकी तो प्रतीति आती है। पहले प्रीति होती है, फिर प्रतीति आती है। अभी प्रीति ही नहीं आवे तो प्रतीति कैसे आवे? इसलिए अनुभव की तो क्या है, प्रतीति में मोर छाप लगती है। यही हूँ मैं, यही मैं ध्रुव परमात्मा हूँ, यही मैं अखंड तत्व हूँ, यही मैं शाश्वत देवादिदेव हूँ। ऐसा उसका अहम चलता है उसमें। मगर निर्णय में क्या होता है कि जानकारी होती है, निर्णय में पता चल जाता है उसको। वो ज्ञान निर्णय करता है, हिता हित का विवेक ज्ञान करता है, यथार्थता ज्ञान बताता है। वो ज्ञान में ही सब पता चल जाता है। ज्ञान झांकता देव है, वो जिससे प्रकट होता है ना, वैसे ही उसमें है ना विचार चलते रहते हैं। एक समय की ज्ञान की पर्याय जो है, जिसको उपयोग बोलते हैं, उसमें विचार की भूमिका चलती रहती थी। अभी सुनने का अभी विकल्प चल रहा है, वो तो विकल्प है, मगर वो विकल्प के समय में वो विकल्प चलता है, उसी समय में ज्ञान विचार करता है कि ये कौन सा विकल्प चल रहा है, कौन सी बात चल रही है, कौन सी बात का निर्णय करना है, निर्णय कैसे होता है, निर्णय में क्या क्या होता है, निर्णय में पर्याय कैसी होती है, निर्णय में द्रव्य कैसा होता है, निर्णय में ध्रुव सामान्य कैसा है, निर्णय में ध्रुव विशेष कैसा है, निर्णय में पर्याय का सामान्य कैसा है, निर्णय में पर्याय का विशेष कैसा है। ऐसा ज्ञान में एक विचार की दशा विकल्प से पार होकर चलती रहती है। और वो ज्ञान की विचार दशा जो चलती है ना, उसमें निर्णय होता है। वो निर्णय जो है, वो निर्णय जब जीव को होता है, तो वो निर्णय आगे बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। वो सब प्रक्रिया ज्ञान की है। जब सम्यक दर्शन का काल आता है ना, तब तो मात्र मोर छाप लगती है श्रद्धा की। श्रद्धा का कुछ काम ही नहीं है। श्रद्धा क्या करती है, जो निर्णय होता है उस पर एक सिक्का लगाती है, कपड़ा लगाती है। ये निर्णय ज्ञान में क्या है, वही मैं हूँ, बस इतना ही काम है श्रद्धा का। सब काम पूरा, जैसे कोई महल में जाना हो तो दरवाजे तक है ना ज्ञान काम करता है। बराबर। श्रद्धा तो फिर श्रद्धा के साथ में ज्ञान अंदर जाता है। पहले निर्णय की भूमिका में यहाँ तक काम ज्ञान का है, तो वैसे ज्ञान की बोलबाला है, ज्ञान का निर्णय होता है, ज्ञान में निर्णय होता है। ऐसा ज्ञान का स्वभाव है। जैसे अपन ने सवेरे जो चर्चा ली थी ना, कि एक तो त्रिकाली ध्रुव है और एक पर्याय का परिणमन है, वो दोनों मिलके एक प्रमाण की सत्ता। अभी प्रमाण की सत्ता के दो अंश है, एक ध्रुव अंश है और एक परिणाम अंश है। अभी ध्रुव अंश है, वो ध्रुव अंश को ध्रुव अंश से देखो तो वो खुद अंश ही है, वो अंश नहीं है।
दोनों को जब समझना हो तो दोनों को अंश बोला जाता है। अभी एक अकेली ध्रुव की अपन चर्चा करें, अकेले उसकी बात करें, और पर्याय की चर्चा अपन छोड़े, अभी प्रमाण में से शुद्ध नहीं की तरफ जावे तो शुद्ध द्रव्य दिखता है, तो शुद्ध द्रव्य जो है उसकी चर्चा करें तो वो तो अंशी है, वो तो उपादेयभूत तत्व है, वो तो आदरणीय पदार्थ है, वो तो अहम करने लायक शुद्ध तत्व है। तो वो ध्रुव है, वो कैसा है, कुटस्थ है, वो परिणमता नहीं है। वो ध्रुव सामान्य और ध्रुव विशेष दोनों मिलके एक ध्रुव अखंड पदार्थ है। वो ध्रुव सामान्य और ध्रुव विशेष माने कि ध्रुव सामान्य और ध्रुव विशेष मिलके पूरी एक अखंड सत्ता है। ये तो अपन तो दोनों को भेद करके सोच करके समझने का प्रयत्न करते हैं। अंदर में वहां जब अहम करती है पर्याय तो वहां भेद नहीं दिखता उसको, क्योंकि अंदर में भेद है ही नहीं। अंदर में भेद होवे तो भेद दिखे, भेद है नहीं अंदर में, वो तो अभेद है, वो तो ध्रुव है, वो तो अखंड है, शाश्वत है, त्रिकाल है, परम डायनामिक भाव लक्षण से लक्षित वो नायक देव है, वो तो अभेद अखंड है, उसमें कोई भेद हुआ नहीं। भेद करके अपन क्यों समझते हैं, उसके पीछे भी कारण है। क्योंकि कोई भी जीव हो उसको ध्रुव खाली आप बोलो तो ध्रुव कैसा है, कैसा ध्रुव है, तो उसको कैसा ध्रुव है तो उसको बोलना पड़ेगा कि ध्रुव है वो असंख्य प्रदेशी है, वो निर्विकल्प है, वो त्रिकाल उसका काल है, वो अनंत गुणात्मक है, ऐसा ध्रुव है। तब उसको अंदर से वो सोच करके उसके अंदर से महिमा आएगी। वो मेरा अंदर का ध्रुव है, उसमें इतना 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 भरा है, ये भरिता वस्तु है, वो खाली नहीं है अंदर में। ऐसे ध्रुव कुटस्थ है, उसको ऐसा लगता है उसमें तो कुछ है ही नहीं, मेरी पर्याय जब उसको देखेगी ना तब उसकी महिमा आएगी। ऐसा नहीं है, पर्याय अपेक्षित ध्रुव नहीं है, पर्याय पर्याय में है, ध्रुव ध्रुव में है। ध्रुव की खुद की अपनी महिमा है, अपने से वो महिमावंत है, अपने में उसकी निधि छिपी हुई है, वो अपने में द्रव्य क्षेत्र काल भाव से खंडित नहीं होता हुआ अखंडित परिपूर्ण है। ऐसा नायक देव है, ऐसा ध्रुव परमात्मा है, ऐसा चैतन्य परमात्मा है, ऐसा चैतन्य रसखंड में हूँ, ऐसा ज्ञानानंद स्वभावी है, अंदर में सुख ज्ञान अतीन्द्रिय आनंद से भरपूर भरा है। ऐसा जो चैतन्य परमात्मा है, ऐसा जो नायक देव है, ऐसा जो मैं हूँ, उसमें क्या क्या है उसके लिए भेद पाड़ के समझाना पड़ता है। तो एक ध्रुव सामान्य और एक ध्रुव विशेष और एक पर्याय सामान्य और एक पर्याय विशेष, ये बोल अपन ने सवेरे लिए थे कि एक ध्रुव सत्ता एक पर्याय की सत्ता। अभी ध्रुव सत्ता में ध्रुव सामान्य और ध्रुव विशेष, तो ध्रुव सामान्य में त्रिकाली द्रव्य, उसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, और ध्रुव विशेष में उसकी अनंत गुण की अनंत कारण शुद्ध पर्याय और उसके त्रिकाल ज्ञान दर्शन के उपयोग कि जिसमें वो पूरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अखंडित जो ध्रुव सामान्य है उसका जानना देखना निरंतर, उसमें निष्क्रियपणे बिना क्रिया से कोई भी प्रकार की उत्पादन वाली क्रिया उसमें नहीं है, ऐसा ध्रुव विशेष में ध्रुव सामान्य का जानना अनादि से चल रहा है जीव को। अनादि से, जब से जीव है, जब से जीव है, तब से जब तक जीव रहेगा तब तक जानना देखना, 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 वो उसका जानना देखना अंदर में चालू है, वर्त रहा है। इसका प्रवाह है उसका, वो प्रवाह कभी प्रवाह में कुछ गेम नहीं करता, वो चल ही रहा है, वो चलने वाला ही है। अनादि से वो जानना देखना, जानना देखा, जानना देखना, जानना देखना, वो अंदर में चालू है, अंदर में फंक्शन है। वो फंक्शन कैसा है कि क्रिया नहीं है उसमें, वो निष्क्रिय है। निष्क्रिय तो शक्ति भी है आत्मा में, और वो निष्क्रिय पड़ा है, वो निष्क्रिय है। निष्क्रिय में निष्क्रियता जानना बिना विकल्प से, बिना क्रिया से जानना देखना अनादि से चल रहा है, अनादि से चल रहा है। ऐसा भेद पाड़ के कहने का व्यवहार है। अंदर में तो अभेद होने जानना देखना चलता है, निर्विकल्प होने जानना देखना चलता है। वहाँ कोई भेद नहीं है इसलिए विकल्प नहीं है। जहाँ भेद होता है वहाँ विकल्प की उत्पत्ति होती है, जहाँ अभेद है वहाँ निर्विकल्पता है। ऐसे अंदर में शाश्वत होने, ध्रुव होने जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना, वो प्रवाह चालू है, अंदर प्रवाह चालू है, वर्त रहा है, वर्त रहा है।
ऐसा मेरा स्वभाव है, ऐसा मेरा ज्ञानानंद परमात्मा है, ऐसा सुख रस से भरा पड़ा है अंदर में, चैतन्य रस है अंदर में, रस तरबोड़ है अंदर में, खाली खाली नहीं है, अंदर में बहुत माल भरा है। वहां से ही तो सब निकलता है, वहां से ही सब निकलता है। ज्ञान कहाँ से आता है? ज्ञान शास्त्र में से आता है, ज्ञान तीर्थंकर भगवान की वाणी में से आता है, कहीं बाहर से ज्ञान आता है, जिनेन्द्र मंदिर में से ज्ञान आता है, मुनिराज के पास बैठने से ज्ञान मिलता है। ज्ञान की प्रवाह की जो सर्वाणी फूटती है वो विनायक में से आती है, विनायक में से आती है, विनायक में से आती है। वो ध्रुव प्रवाह अंदर बहता 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 बाहर उपयोग रूप निकला है, अंदर से निकला है वो बाहर। जैसे पानी होता है दरिया में तो वो कैसे ऐसे बाहर आता है और ऐसे अंदर चला जाता है, बाहर आता है अंदर चला जाता है। अभी उसमें बाहर आया ऐसा भेद करो तो विकल्प है, अभी उसको पानी ही पानी देखो तो निर्विकल्पता है। उसको आप ऐसा देखो कि ये तो है ना, ये मोजा है और ये पानी अंदर में है और ये मोजा है, तो विकल्प हो गया भाई, वो भेद हो गया, तो विकल्प की उत्पत्ति हो गई। एक भेद की उत्पत्ति में संसार खड़ा होता है। भेद यानी विकल्प, विकल्प यानी दुख, दुख यानी संसार। इतना भेद में संसार की उत्पत्ति होती है और इसको ही इसको मैं तो पानी मात्र हूँ, यानी मैं तो ज्ञान मात्र हूँ, यानी मैं तो विनायक मात्र हूँ, ऐसा देखने से भेद विकल्प ही नहीं होता है, तो निर्विकल्पता होने से मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति हो जाती है। जितना भेद उतना संसार, जितना अभेद इतना मोक्ष मार्ग और मोक्ष। ऐसा अंदर में ध्रुव प्रवाह चलते 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 वो जो उत्पाद रूप एक उपयोग है ना, प्रति समय प्रकट होता है। समयवर्ती उपयोग है, समयवर्ती उपयोग प्रकट हो गया, वो प्रकट हुआ अंदर विलीन हो गया, प्रकट होता है दूसरे समय अंदर विलीन हो जाता है। अभी वो प्रकट होता है और विलीन होता है, उसमें वहां तो ज्ञान ही रहता है, वहां कुछ है नहीं और ज्ञान मात्र है, वो उत्पत्ति ज्ञान मात्र है, ज्ञान 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 के सिवा कुछ है ही नहीं वहां पे। अभी वो ज्ञान उत्पन्न हुआ दूसरे समय व्यय हुआ, अभी उत्पन्न हुआ और दूसरे समय व्यय हुआ, उसमें जो ज्ञान क्रिया चलती है, क्या चलता है उसमें? ज्ञान की क्रिया चलती है, समयवर्ती ज्ञान क्रिया है। वो ज्ञान क्रिया में भी है तो ज्ञान, उसमें कोई नहीं नहीं है, है तो ज्ञान ही उसमें। वो ज्ञान क्रिया में, वो ज्ञान में ज्ञान क्रिया चलती है, ज्ञेय क्रिया नहीं है, राग की क्रिया नहीं है, आश्रव की क्रिया नहीं है, संवर की क्रिया नहीं है, निर्जरा की क्रिया नहीं है, मोक्ष की क्रिया नहीं है। कोई तत्व की क्रिया वो ज्ञान स्वभाव जो है उसमें नहीं चलती है, उसमें ज्ञान में ज्ञान क्रिया चलती है, ज्ञान की ही स्वयं क्रिया चलती है। वो ज्ञान की क्रिया में क्या होता है कि जानना चलता है, जानना, मात्र जानना, मात्र जानना, मात्र जानना, मात्र जानना। वो कुटस्थपने जानना देखना वो तो ध्रुव स्वभाव है। अभी वो ध्रुव स्वभाव में से जो ये उपयोग बाहर निकला है, वो बाहर आया, वो उत्पाद हुआ उसका, वो भी क्या है? ज्ञान रूप है, उससे ज्ञान के अलावा कुछ है ही नहीं। तो वहां पे क्या चला? ज्ञान की क्रिया चली, ज्ञान के अलावा कुछ नहीं, ज्ञान 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 ज्ञान। वहां भी जानना 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 चलता है और कुछ चलता नहीं है। अभी किसको जानना किसको नहीं जानना ये बात नहीं, जानना चलता है, जानना चलता है, उसमें जाननहार है वो, तो जानना 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 ही चल रहा है। वहां स्वभाव उसका इतना ही है, वहां जानना ही चल रहा है, जानना ही चल रहा है, जानना ही चल रहा है। अभी वो उत्पाद हुआ और दूसरे समय व्यय हुआ, उसमें जो ज्ञान क्रिया चली, अभी वो ज्ञान क्रिया का रहस्य बहुत गंभीर है। बराबर, यहाँ तक तो स्वभाव ही है, कुछ हुआ ही नहीं उसमें। अच्छा, द्रव्य में तो नहीं हुआ, ध्रुव सामान्य में तो नहीं हुआ, ध्रुव विशेष में तो नहीं हुआ, उसकी कारण सुख पर्याय में नहीं हुआ, उसका त्रिकाली ध्रुव में नहीं हुआ, मगर वहां से जो उत्पाद रूप ज्ञान आया, वो उत्पाद रूप ज्ञान से भी कुछ हुआ नहीं है, कुछ नहीं हुआ, वो ज्ञान रूप ही रह गया है अनादि से। बराबर, कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये
प्रगट उपयोग में भी कुछ नहीं हुआ है, तो हमने तो ऐसा सुना है कि अभी तो मैं अज्ञानी हूँ, अभी तो राग द्वेष मोह का परिणमन मेरा चल रहा है, तो वो सब क्या है? तो कोई ऐसा बोले कि नहीं अज्ञान तो है ही नहीं, ऐसा भी नहीं है, राग द्वेष है ही नहीं, ऐसा भी नहीं है, विद्या तो है ही नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि तो सम्यक दर्शन होना चाहिए, वितरागता होनी चाहिए, केवल ज्ञान होना चाहिए, वो भी तो है ही नहीं। तो अभी ज्ञान में तो ज्ञान ही है, तो अपने को निर्णय की बात कर दीजिए, शुरू किया सबसे निर्णय की बात कर दीजिए, निर्णय का काम है इसमें। अभी निर्णय नहीं होगा तब तक कार्य सिद्धि नहीं होती है। इसमें निर्णय करना है अपने को कि क्या हो क्या रहा है उसमें, बराबर, और मैं मानता क्या हूँ, मेरी मान्यता क्या है और सचमुच में अंदर क्या हो रहा है, बस इसी पे ही पूरा दर्शन है। इतना तो स्वभाव भी है, उसमें तो कुछ हुआ ही नहीं है, बराबर, एकदम ऐसे ही परिपूर्णता है, वहां कृत्यता है, अभेदता है, अखंडता है, ध्रुवता है उसमें पूरी पूरी। पर्याय में भी, पर्याय का उत्पाद में भी पर्याय की ध्रुवता है, उसके परिणमन में भी सामान्य स्वभाव में उसकी पर्याय की स्वयं संचालित ध्रुवता भी है। अभी वो उत्पाद हुआ है तब तक की बात है, उत्पाद होके व्यय होना उसके बीच की क्रिया है, उसकी बात नहीं है ये, बराबर। उसमें तो अज्ञान और सम्यक ज्ञान आता है, मगर जब तक उत्पाद है, उत्पाद हुआ है, उपयोग प्रकट हुआ है, तब तक कुछ नहीं है, स्वभाव 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 ही है। और इतना बड़ा आत्मा, इतना उसका द्रव्य, उसका क्षेत्र, उसका काल, उसका भाव, उसकी अखंडता, उसकी अनादि अनंतता, उसकी निर्विकल्पता और उसका ध्रुव विशेष, अनंत गुण की अनंत कारण शुद्ध, ऐसा उसका जानना देखना भी चले अनादि से, कुछ हुआ ही नहीं उसमें। अच्छा, उसमें से बाहर निकलता उपयोग है, उसमें भी कुछ नहीं हुआ, वो भी ज्ञान रूप रह गया। तो अभी वो एक समय में प्रकट होके फिर ये हुआ, वो एक समय की चर्चा तुझे क्यों पसंद आती है? उसमें हुआ क्या है? इतना बड़ा देव विराजमान है, इतना शाश्वतपना विराजमान है, फिर भी दोष तो दो ही है। कितने दोष है? दो, एक अभिप्राय का और एक अस्तित्व का। और गुण कितने हैं? अनंत गुण है। अनंत गुण की खोज करने के लिए तेरा ज्ञान अभेद रूप से जो अंतर अनंत गुण की खोज करने जाएगा तो ज्ञान उधर से बाहर ही नहीं निकलेगा। तो अस्थिरता कहाँ गई और अभिप्राय का दोष कहाँ गया तुझे पता ही नहीं चलेगा, केवल ज्ञान हो जाएगा। ऐसा अंदर में स्वभाव पड़ा है, ऐसी अंदर में परिपूर्णता है, ऐसा जाज्वल्यमान देव पड़ा है अंदर में, ऐसा ज्ञानमयी ज्ञायक देव है, ऐसा ध्रुव परमात्मा पड़ा है अंदर में। ऐसे विराजमान शाश्वत सदा दर्शन देता हुआ, सदा दर्शन दे रहा है और सदा उसका ध्रुव विशेष दर्शन तो ले रहा है, उपयोग भी दर्शन ले रहा है। दर्शन करने जाना नहीं उसको, वो दर्शन दे रहा है, उपयोग दर्शन ले रहा है, ऐसा चालू है, ऐसा स्वीकार नहीं आता है उसको। मात्र स्वीकार का ही तो काम है, अंदर में तो ऐसे नहीं से पड़ा है, सब कुछ हुआ ही नहीं। कोई गुण है वो राग रूप परिणमता है, और रूप परिणमता है, मिथ्या स्वरूप परिणमता है, अज्ञान रूप परिणमता है। ऐसा कोई अंदर में गुण है कि जो अज्ञान रूप परिणम है? गुण कभी अज्ञान रूप नहीं परिणमता, गुण कभी राग रूप नहीं परिणमता, गुण कभी मिथ्या स्वरूप नहीं परिणमता। गुण तो सदा अपने रूप रहता है, वो तो शाश्वती रहता है। गुण का तो परिणमन ही नहीं होता है, परिणमन तो पर्याय का एक समयवर्ती है। गुण तो ध्रुव पड़े बैठा है, उसमें तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो कितनी अनंतता, कितनी अजातता की अनंत 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 इतने गुण है, वो शुद्ध रूप पड़े अंदर में, उसको हुआ ही नहीं कुछ। एक सामान्य परिणमती पर्याय में कुछ हो गया तो स्वभाव को देख,
स्वभाव का विचार कर, स्वभाव का महिमा कर अंदर से, वही निर्णय कार्यकारी होता है, वही निर्णय से काम होता है, वही निर्णय दृढ़ करने से मिथ्यात्व और रागद्वेष कहाँ चला गया पता ही नहीं चलता है। ज्ञान को एक ऐसा विषय दे दे तू ज्ञायकता कि वहां से वो चलित ही नहीं हुए, तो यही हूं मैं, यही हूं, यही हूं, ज्ञान कहीं जाए ही नहीं, उसको छोड़े ही नहीं कभी। ऐसा महिमा आना चाहिए अंदर से अपने ध्रुव पदार्थ। ये ज्ञानी का जन्म सामान्य प्रथा दिखाने के लिए होता है, ध्रुव दिखाने के लिए ज्ञानी का जन्म होता है। जो द्रव्य दृष्टि का दान दिया है, द्रव्य दृष्टि का दान दिया है और कुछ बात नहीं करी, वो ज्ञान कराते जाते हैं ना, वहां अपना ज्ञान चला जाता है, और दृष्टि कराने की बात आती है ना तो अपना ज्ञान उधर चलता नहीं है, और मूल बात तो उसको कहनी है। बराबर, दृष्टि का विषय कहने के लिए ही ज्ञानी का जन्म होता है। सुख भाव का तो वो उपदेश सब मार्ग में है, अजैनों में भी है सुख भाव का उपदेश। कोई उपदेश नहीं देता ऐसा पाप करो, सब बोलते हैं पुण्य करो, पुण्य करो, पुण्य से धर्म होता है, पुण्य से धर्म होता है, पुण्य से धर्म होता है, सभी मत में ऐसा है, तो सब बोलते हैं। वो ये बोलता है पुरुष कि पुण्य पाप से जुदा तेरा सुख तो ले गया है अनादि से, बराबर, ऐसा परमात्मा है तू, ऐसा अखंड देव है, ऐसा तेरा स्वरूप है, ऐसा तेरा स्वभाव है, ऐसी तेरी चैतन्यता है, उसको तू विवेक करके वहां तेरा ज्ञान को रख, वहां से उसको च्युत मत होने दे। जितना ज्ञान च्युत होता है ज्ञायक में से तो बंध में चला जाता है, तो ज्ञान ज्ञायक में से च्युत हुआ तो बंद हो गया, तो च्युत होना ही नहीं उधर से। मैं ज्ञान मात्र देव हूं, बस इतना ही संक्षिप्त उपदेश में पूरा सम्यक दर्शन का विषय भरा है। अभी ये तो स्वरूप की महिमा अंदर से आनी चाहिए, उसका भाव भाषण अंदर से होना चाहिए कि मैं तो ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही। अभी जो ज्ञान प्रकट हुआ, एक समय में ज्ञान प्रकट हुआ और वो दूसरे समय में हुआ, उसके बीच में क्या होता है उसकी अपन चर्चा भी करते हैं, तो सबको पता चल जाए कि क्या हो रहा है, मैं क्या समझ रहा हूँ और मेरा मिथ्यात्व क्यों नहीं जाता है, मेरा अज्ञान क्यों चला नहीं जाता है। ये बात है ना बहुत थोड़ी है, बराबर, ज्यादा बात है नहीं इसमें जैन दर्शन, मगर अज्ञानियों ने उसका ज्यादा विस्तार कर दिया है। गुरुदेव तो एक ही बात करते हैं, तू ध्रुव है, उस पर तू थम जा, बस ज्यादा तू जानकारी के विषय में आगे मत बढ़। तू तेरा त्रिकाली द्रव्य की चर्चा आवे ना, उससे तू तेरा ज्ञान को ले जा, वहां तक ले जा और अंदर जाके विस्तार कर अंदर का कि अंदर में क्या भरा है। वो ये कहे कि तुम ध्रुव हो, ध्रुव का ज्ञान करो, ध्रुव की श्रद्धा करो, ध्रुव का ज्ञान करो। अभी उसको पता ही नहीं ध्रुव कैसा है, ध्रुव कैसा है पता ही नहीं, तो पर का ध्यान करो कि ध्रुव का ध्यान करो, एक ही हो गया उसको, उसको फर्क क्या रहा, उसको समझ ही नहीं है ध्रुव कैसा है, मैं कैसा महिमावंत हूँ, मेरे अंदर में क्या क्या भरा है, ज्ञान का सागर हूँ अंदर में, ऐसा उसको पता ही नहीं। एक एक गुण है, एक एक प्रदेश है, एक एक प्रदेश में अनंत गुण पथरे हुए अंदर में। अभी वो एक एक गुण है, उसकी कितनी महिमा है, उसके एक एक प्रदेश में अनंत गुण रहते हैं, तो कैसे रहते हैं, विस्तार सामान्य समुदाय से ऐसे पथरे हुए हैं सब गुण, ऐसे अंदर में ऐसे अनंत गुणात्मक एक त्रिकाली द्रव्य अंदर में शाश्वत विद्यमान है। जीवत्व, चिति, वृत्ति, ज्ञान, सुख, वीर्य, प्रभुत्व, विभुत्व, सर्वदर्शित्व, सर्वज्ञत्व, स्वच्छत्व, कथा, असंकुचित, विकासत्व, ऐसी अनंत 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 शक्तियों से भरपूर पड़ा है अंदर। ऐसा चैतन्य देव है, उसकी महिमा नहीं आवे, उसका विश्वास नहीं आवे, उसकी शाश्वत का पता नहीं चले उसको, और एक समय की क्षणिक पर्याय में उसका उपयोग चला जावे, उसको ढूंढने लगे, उस पर क्या होता है, ये अंदर क्यों नहीं जाती है, ये फिर ठीक क्यों नहीं है, क्योंकि अंदर क्यों नहीं आता है, ये बाहर क्यों चला जाता है। ये सब तो विभाव भाव में उसका उपयोग अनादि से चल रहा है, उससे कुछ है नहीं।
वो सचमुच में देखो ना तो उपयोग कहीं जाता ही नहीं। बराबर। सचमुच तो उपयोग है ना, उपयोगवान को कभी छोड़ता ही नहीं। उसको भ्रम हो गया है कि मेरा उपयोग छूट गया है, उसको भ्रम हो गया है। ये भ्रमणा का संसार है। 271 कलश में कहा है राजमजी तरफ टीकाकार कि मैं ज्ञाता और ये मेरे ज्ञेय, बड़ी भ्रांति है। भ्रांति का भ्रांति, व्यवहार नहीं कहा उधर, बड़ी भ्रांति चल रही है। भ्रांति क्या है? भ्रांति नाम का कोई पदार्थ है? भ्रांति क्या होती है? कुछ नहीं है, माने हुआ ही नहीं कुछ। ये तो ऐसा लगता है कि ऐसा हो गया, ऐसा हुआ नहीं है। इससे ज्ञान जो है वो प्रकट होता है। प्रति समय ज्ञान का उपयोग माने कि ज्ञान रूप उसका प्रकटपना प्रति समय चलता है। अभी वो प्रकट होता है, तो प्रकट होते हुए उसमें क्या होता है? ज्ञान होता है। ज्ञान में ज्ञान का ही सर्वस्व है। ज्ञान के सिवा ज्ञान में कुछ ही नहीं। इधर ज्ञान 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 ही है। प्रकट भी ज्ञान है और व्यय भी ज्ञान होता है। उत्पाद भी ज्ञान का होता है, व्यय भी ज्ञान का होता है। अभी बीच में जो क्रिया चलती है वो उत्पाद और व्यय के बीच में एक परिणमन है। जो उत्पाद हुआ है ना वो तो अंदर से सामान्य हुआ है। अभी एक क्रिया चली और क्रिया चल के व्यय होता है ना, वो भी सामान्य है। बराबर। बीच में जो क्रिया चलती है समयवर्ती, एक समयवर्ती क्रिया चलती है, उसमें रहस्य है। उसमें क्या होता है? उसमें भी है तो ज्ञान, ज्ञान के सिवा तो है ही नहीं कुछ। वो ज्ञान के ही आकार चल रहे हैं उसमें। ज्ञान के आकार प्रति समय ज्ञान का परिणमन में भी ज्ञान का ही आकार चलता है। ज्ञान 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 रूप ही आकार वहां पे होते हैं। यदि ज्ञान रूप आकार होता है तो वो ज्ञान कैसा है? ज्ञान का स्वभाव की बात चल रही है। वो ज्ञान का स्वभाव स्व पर प्रकाशक है। स्व पर प्रकाशक से घबराना नहीं। स्व पर प्रकाशक स्वभाव ही है ज्ञान का, उसमें दोष नहीं है। स्व पर प्रकाशक का अर्थ समझता नहीं है ना, उसको दोष लगता है। स्व पर प्रकाशक तो स्वभाव है मगर उसके है स्व। बराबर। स्व पर प्रकाशक स्वभाव है मगर उसपे है क्या? स्व। तो माने कि ज्ञान 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 ही है। वहां ज्ञान को ही स्व बोला जाता है। वो ज्ञान ध्रुव रूप हो, वो ज्ञान ध्रुव विशेष रूप हो, वो ज्ञान उत्पाद रूप सामान्य हो, कि वो ज्ञान परिणमन रूप विशेष हो। वो है ज्ञान। ज्ञान के सिवा कुछ नहीं है वहां पे। अभी वो ज्ञान का स्वभाव स्व पर प्रकाशक होने से वो ज्ञान में ही ज्ञान में, वो ही ज्ञान में, एक ही ज्ञान में ज्ञान की द्विरूपता है। ज्ञान का स्वभाव कैसा है? द्विरूपता वाला। वही ज्ञान में ज्ञानत्व है और वही ज्ञान में ज्ञेयत्व है। ज्ञान एक है। बराबर। ज्ञान का स्वभाव क्या है? स्व पर प्रकाशक। और स्व पर प्रकाशक ज्ञान का स्वभाव है। स्वर के कारण स्व प्रकाशक नहीं है। बराबर। स्व के कारण स्व प्रकाशक नहीं है। ज्ञान का उत्पाद रूप स्वभाव स्व पर प्रकाशक है। उत्पाद रूप स्व पर प्रकाशक वो ज्ञान का स्वभाव है, ज्ञेय का नहीं है, नायक का नहीं है। ज्ञान की एक समय की उपयोग रूप जो परिणमन दशा है उसका स्वभाव स्व पर प्रकाशक है। तो स्व पर प्रकाशक माने क्या? ज्ञान में ज्ञान को स्व बोला जाता है। बराबर। और ज्ञान में ही ज्ञान का खुद का एक ज्ञेय है, वो ज्ञेय को पर बोला जाता है। ज्ञेयत्व धर्म और ज्ञानत्व धर्म, ये दोनों धर्म ज्ञान के स्वभाव का प्रतीक है। जैसे अनंत गुणों की अनंत पर्यायों में ज्ञेयत्व है, प्रमेयत्व है ना, सबसे है। तो ज्ञान में भी प्रमेयत्व तो होना चाहिए, तो है उसमें भी। अभी ज्ञान में एक एक्स्ट्रा भी स्वभाव है, जानना। वो कोई गुण की कोई पर्याय में नहीं है, बराबर। अकेला ज्ञान में है।
वो ज्ञान जानता भी है और ज्ञान जनित भी जाता है। एक ही ज्ञान में, उसी को बोलते हैं स्वपर प्रकाशकता। एक ही ज्ञान में ज्ञानत्व और एक ही ज्ञान में ज्ञेयत्व, वो सहज है उसका स्वभाव, उसमें कोई पर की अपेक्षा नहीं है उसको। वो तो जानना और जनाना खुद का ज्ञान का स्वभाव है। तो उसमें ऐसा कैसे लगता है कि ये ज्ञेय जानने में आता है? ऐसा कैसे हो गया? ये तो ज्ञान ही जानने में आता है, क्योंकि ज्ञान में ही ज्ञान का ज्ञेयत्व है और ज्ञान में ही ज्ञान का ज्ञानत्व है। ज्ञेयत्व माने जनाना, ज्ञानत्व माने जानना। तो ज्ञान क्या जानता है कि ज्ञान सचमुच में भी जानता है तो अपना स्वयं का ज्ञेयत्व धर्म को जानता है। ज्ञान स्वभाव से अपने ज्ञान को जानता है और पर प्रकाशकता से, देखो पर प्रकाशकता से, तो अपना ज्ञेयत्व धर्म को जानता है। ज्ञान का खुद का धर्म है ज्ञेयत्व। जैसे दूसरी पर्याय हो, जैसे राग है, राग कोई पर्याय में राग चला, तो राग है वो क्या है, उसमें वो चारित्र की विपरीत पर्याय में राग चला, तो उसमें प्रमेयत्व है कि नहीं? प्रमेयत्व है ना गुण। सबने वो तो पाठशाला में सिखाते हैं, प्रमेयत्व, अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, ये सामान्य गुण की व्याख्या तो आती है। तो वो प्रमेयत्व जो है, तो वो क्या है? प्रमेयत्व की व्याख्या क्या? कहीं न कहीं वो प्रदर्शित होता है, अपना अस्तित्व कहीं न कहीं प्रदर्शित करता है। तो वो राग क्या करता है? वो खुद अपना अस्तित्व ज्ञान में प्रदर्शित करता है। ज्ञान को कुछ नहीं हुआ है, ज्ञान को लेना देना है ही नहीं उससे कुछ। वो तो स्वयं कोई प्रदर्शित होवे, तो अपन यहाँ कोई बंद थोड़ी कर सकते हैं ज्ञान को कि अभी मैं यहाँ बस स्टॉप कर दूं कि वो नहीं आवे, यहाँ प्रदर्शित भी नहीं होवे, प्रकाशित भी नहीं होवे, ऐसा तो अपन नहीं कर सकते। वो भले प्रकाशित हो, वो तो उसका स्वभाव है, मेरे को क्या है, उसको होने दो प्रकाशित। इससे ज्ञान है तो ज्ञान में ज्ञेयत्व धर्म खुद का है, इससे राग में ज्ञेयत्व है तो ज्ञान में भी खुद का ज्ञेयत्व है। तो उसकी ज्ञेयत्व तो उसकी पर प्रकाशकता है, तो वो उसका ज्ञेयत्व धर्म प्रकाशित करे और ज्ञान उसको जाने, तो उसके ज्ञेयत्व प्रकाशित होवे, उसके ज्ञान का कुछ बिगड़ता है क्या? अच्छा, अभी ज्ञेयत्व में क्या है? ज्ञान का ज्ञेयत्व क्या होता है? ज्ञान का ज्ञेयत्व माने कि ज्ञान का पर प्रकाशकता। तो वो ज्ञान की पर प्रकाशकता में है क्या? सचमुच में ज्ञान की पर प्रकाशकता को ज्ञेयत्व अपन ने धर्म स्थापित किया, तो उसमें सचमुच में क्या है? वो भी एक समझने लायक है कि अपन थोड़ा उसको ज्ञान स्वभाव को समझने का प्रयास करते हैं कि अंदर में प्रक्रिया चलती कैसे है। अपने को ऐसा लगता है कि ज्ञान किसको जानता है, किसको जानता है, किसको जानता है, और नायक को भी जानता है, उसका नाम स्वपर प्रकाशक है। ऐसा है ही नहीं सचमुच में। ज्ञान बाहर जाता ही नहीं, ज्ञान प्रदेश छोड़ता ही नहीं अपना, वो अपना खुद का प्रदेश में ही रहता है वो, और वहीं रह के वो अपना खुद का ज्ञेयत्व भी वहां है ज्ञान का। तो वो ज्ञेयत्व धर्म ही प्रकाशित ज्ञान में होता है प्रति समय। अभी वो ज्ञेयत्व धर्म प्रकाशित ज्ञान में होता है। दूसरे सब गुण की जितनी भी पर्याय है, जितनी गुण की जितनी पर्याय है, उसका जो ज्ञेयत्व वो प्रदर्शित करता है ना, वो ज्ञान में प्रदर्शित करते हैं, कहीं न कहीं वो प्रदर्शित करते हैं। तो वो प्रदर्शित करते हैं, वो उसका नाम बोला जाता है ज्ञान का ज्ञेयत्व धर्म। वो वहां प्रकाशित होता है। वो ज्ञेयत्व धर्म को ज्ञान नहीं जानता है, वो ज्ञेयत्व धर्म ज्ञान में प्रकाशित नहीं होता है। वो ज्ञेयत्व धर्म ज्ञान का पर प्रकाशकता, जो ज्ञान का खुद का ज्ञेयत्व है, वहां उसका प्रकाशन चलता है। और ज्ञान अपना खुद का ज्ञेयत्व धर्म को जानता है, उसका को नहीं। उसको बोलते हैं ज्ञान ने ज्ञान को जाना। ज्ञान को ही जानता है, ज्ञान ज्ञेयों को नहीं जानता है, ज्ञान को ही जानता है, ज्ञान को ही जानता है। क्योंकि पर प्रकाशक ज्ञान का स्वभाव, उसका मतलब ये है कि ज्ञान का स्व प्रकाशक स्वभाव माने ज्ञान खुद जानने वाला,
और पर प्रकाशक ज्ञान का स्वभाव माने के ज्ञान का ज्ञेयत्व जलाने वाला। तो वो ज्ञेयत्व और वो बाहर की अनंत पर्यायों का ज्ञेयत्व, उसको निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मेरे ज्ञान को उसके साथ निमित्त संबंध नैमित्तिक संबंध नहीं है। ये ज्ञान स्व हूं तो जानने वाला, तो जाननहार, ये तो जानना 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 मेरा स्वभाव है, तो मेरा स्वभाव नहीं है। इस तरह से जानना होता है ज्ञान में, और उसको ऐसा लगता है कि मेरा ज्ञान का स्वभाव सब जगह जानने चला जाता है, और वो ज्ञेयत्व है वो मेरे ज्ञान में प्रदर्शित होता है। ये प्रतिभास शब्द आता है, प्रतिभास, प्रतिबिंब, झलकना, अवभाषण, ये सब क्या है? सचमुच में वो है क्या? होता क्या है उसमें? प्रतिभास होता है तो होता क्या है? अवभाषण होता है तो होता क्या है ज्ञान में? वो ज्ञान संबंधित है प्रतिभा, और की कोई अपेक्षा नहीं है उसमें, और के साथ संबंध ही नहीं है उसमें कोई प्रतिभा। ज्ञान का खुद का ज्ञेयत्व है, वो ज्ञेयत्व झलकता है ज्ञान में, स्व में, उसको बोलते हैं कि ज्ञान का ज्ञेय का प्रतिभास ज्ञान में हुआ। उनका प्रतिभास तो होता ही नहीं, कभी कभी नहीं होता। वो ज्ञान अपना ज्ञेयत्व को जानता है, और अपना ज्ञेयत्व पर प्रकाशक है, उसका पर प्रकाशक का प्रतिभास यहाँ चलता है, और उसको वो जानता है। तो उपचार से ऐसा कहा जाता है कि उसने राग को जाना, उसने मिथ्या को जाना, उसने इसको जाना, उसने इसको जाना, वो उपचार है। सचमुच में जिसको तन्मय होकर नहीं जाने उसको बोला जाता है उपचार, जिसको तन्मय होकर जाने उसको बोला जाता है स्वभाव, उसको बोला जाता है निश्चय। तो ज्ञान सुपर प्रकाशक अखंड है, वो अखंड है, अखंड है। वो ज्ञान में ज्ञान का ही ज्ञानत्व, और ज्ञान में ज्ञान का खुद का ज्ञेयत्व है, और उसको वो ज्ञान ज्ञान को ही जानता है। वो उपचार से बोला जाता है कि उसको जाना, उसको जाना, उसको जाना। तो सचमुच में कभी ज्ञान ज्ञान को छोड़ता ही नहीं, ज्ञान को ज्ञान ने जानना छोड़ा ही नहीं कभी। वो जानता है ऐसा भी तुझे बहुत विकल्प चले तो इतना भेद पाड़ना कि अपने ज्ञेयत्व धर्म को जानता है। बाकी तो वो ज्ञान सचमुच ज्ञान को ही जानता है। बराबर, ऐसा ज्ञान का स्वभाव है, ऐसा ज्ञान का स्वरूप है। इसलिए कभी सर्वत्र ज्ञान का ही चमकना है। सर्वत्र ज्ञान નું જ વ્યાપવું છે, જ્ઞાન સિવાય કોઈનું વ્યાપવું ક્યાંય છે જ નહીં। જ્ઞેયો છે તો ક્યાંના ક્યાં દૂર છે। જ્ઞેયો સંબંધી પર્યાયોમાં જે વિકલ્પ બીજી પર્યાયોમાં ચાલે છે એ પણ જ્ઞાનથી દૂર છે। જ્ઞાનનું જ્ઞેયત્વ પોતાનું સ્વતંત્ર છે એવો ભેદેય જ્ઞાનમાં નથી। જ્ઞાન અખંડ પોતે પોતાથી સ્વતઃ સિદ્ધ સ્વપર પ્રકાશક સ્વતંત્ર છે। नहीं स्वपर प्रकाशक છે એનો અર્થ જ કે સ્વ છે। બરાબર, એ સ્વતંત્ર સ્વ છે, એમાં પર સાથે કાંઈ લેવા દેવા નથી। પર એ શું કરે છે? પોતાનું પ્રમેય તો પ્રદર્શિત કર્યા કરે છે ક્યાંક ને ક્યાંક। તો એમાં કઈ જ્ઞાનને શું? જ્ઞાન એને આમ કઈ કાઢી શકે કે હવે જ્ઞેયાકારોને હું આવવા નહીં દઉં, જ્ઞાન આમ રસ્તો બંધ કરી, એવું તો થઈ નથી શકતું। અને એ ઝળકે એમાં જ્ઞાનને કઈ થાય? જ્ઞાન ને અશુદ્ધતા થોડી આવી જાય। જ્ઞાન તો જ્ઞાનમય છે, એને કઈ થતું નથી। તો એના અભિપ્રાયમાં એવી ભ્રમણા ઉભી કરે, જ્ઞેયાકાર જોઈ, જ્ઞેયત્વ જોઈ, જ્ઞેય જેવા છે એવા જ અહીંયા જ્ઞેયાકાર પોતાથી સ્વતંત્ર થાય એવા જ્ઞેયાકારને જોઈને એ પોતે ભ્રમણા ઉભી કરે કે આ મારામાં જ્ઞેય આવી ગયા, જ્ઞેયને કારણે અહીંયા જ્ઞેયાકાર થઈ ગયા, આ મારું જ્ઞાન જ્ઞેયાકાર રૂપ જ્ઞેય રૂપ પરિણમી ગયું। એવી જો ભ્રમણા પોતે ઉભી કરે તો એ ભ્રમણાનું નામ સંસાર છે। એ અભિપ્રાય મિથ્યાત્વ અભિપ્રાય, ખોટો અભિપ્રાય, મિથ્યા અભિપ્રાય, એનું નામ સંસાર છે। અને એ જો નિર્ણય કરી દે, ભલે સમ્યક દર્શનનો તો સ્વકાર હોય, એને કોઈ ન લઈ આવે, તો એની જન્મ હોય, નિર્ણય કરી શકે।
નિર્ણય કરી લઈએ કે મારું જ્ઞાન છે ને એ મારા જ્ઞાનમાં મારું તો જ્ઞેયત્વ રહેલું છે અને એ મારા જ્ઞાનનું જ્ઞેયત્વ છે, એ મારા જ્ઞાનનું જ પોતાનું સ્વતંત્ર જ્ઞેયાકારપણું છે. આ જ્ઞેયનું કાંઈ નથી, બહારના જ્ઞેયનું કાંઈ નથી, મારું પોતાનું સ્વતંત્ર છે. જેટલું છે એટલું મારા જ્ઞાનમાં જ્ઞાન છે બસ. અને એ જ્ઞાન કેવું છે તો કે એ જ્ઞાન જ્ઞાયકમાંથી આવતો પ્રવાહ છે. તો એ જ્ઞાનમાં શું છે, એ જ્ઞાયકનો અંશ છે. તો એ અંશ છે એ શું પ્રદર્શિત કરે, અંશીને જ પ્રદર્શિત કરે, અંશીને જ પ્રકાશિત કરે, અંશીને જ જાણ્યા કરે. કારણ કે જે જ્ઞાન જેમાંથી આવતું હોય એ એનું જ હોય. જ્ઞાન સ્વમાંથી આવતું હોવાથી એ જ્ઞાનના અંશને સ્વપ્રકાશક કહેવામાં આવે છે. તેમાંથી આવતું હોવાથી જ્ઞાયક સ્વ છે અને એ જ્ઞાયકમાંથી જ્ઞાન આવતું હોવાથી એ જ્ઞાનનું નામ સ્વપ્રકાશક છે. સ્વમાંથી આવે એટલે સ્વપ્રકાશક, પરમાંથી નથી આવતું એટલે એ પ્રકારે પરપ્રકાશક નથી. સ્વમાંથી આવે છે એટલે સ્વપ્રકાશક જ છે. स्व में से आता है इसलिए स्व प्रकाशक ही है. ऐसा है ज्ञान का स्वरूप, ऐसा है ज्ञान का स्वभाव. ये एक ज्ञायक की ध्रुव सामान्य और ध्रुव विशेष, और ये ज्ञान का सामान्य और ज्ञान का विशेष तो भेद रूप होता है. ये तो ज्ञान का सामान्य में ही सब है. अभी ज्ञान का कितना जानना हुआ उसकी अपेक्षा लगाओ तो मति, श्रुत, अवधि, मंत्रिय केवल वो सब ज्ञान के विशेष भेद पढ़ते हैं. मगर जिसको ज्ञान सामान्य में ज्ञानत्व और ज्ञेयत्व समझ में आ गया उसको तो क्या है कि ज्ञायक ही दिखता है, और कुछ दिखता ही नहीं. मैं तो ज्ञायक ही हूँ, मैं तो ज्ञानमय हूँ, मैं तो ध्रुव हूँ, मैं तो शाश्वत हूँ, मैं तो अखंड हूँ, मैं तो परम परिणामी भाव लक्षण से लक्षित पदार्थ हूँ. बस ऐसा जानना देखना और ऐसा निर्णय भविष्य जीव को हो जाए, ऐसे ही गुरुदेव का तात्पर्य है. गुरुदेव ने ये बात बहुत कैसेटों में कही है. अपन क्या है उसको इस तरीके से समझने का विचार नहीं करते हैं. अपने एक अभिप्राय में ऐसा बैठ गया है, वो अभिप्राय को ही अपन आगे बढ़ाते रहते हैं. कोई नया तर्क आवे सामने तो उस पर सोच करनी चाहिए. इससे कहने का मर्म क्या है, इससे कहाँ ले जाना है, ये कह के क्या सिद्ध करना है, और इसमें कैसे ज्ञान का स्वभाव समझ के कैसे ज्ञायक पे चला जाता है, इसे समझ के ऐसे विचार करके निर्णय करना ये सभी आत्मार्थी का भविष्य जीव का कर्तव्य है. ऐसा निर्णय सब भविष्य जीव को होके मोक्ष मार्ग में प्रयास करके मोक्ष वस्तु को प्रकट करे. प्रश्न हो तो कही दो, 2-5 मिनट एक प्रश्न હતો. नहीं, वो स्व में से आया है इसलिए उसको स्व प्रकाशक बोला जाता है. माने कि वो स्वपर प्रकाशक की बात है, वो बात नहीं है. तो स्व में से आया है इसलिए वो स्व को ही प्रकाशता है, वो दूसरे को प्रकाश नहीं सकता है, क्योंकि वो आता है स्व में तो वो स्व को ही प्रकाशित कर सकता है. माने कि स्वपर प्रकाशक तो उसका अखंडपना है, ज्ञान का स्वभाव है, वो छूटता नहीं है. मगर वो ज्ञान स्व में से आता है तो स्व को ही प्रकाशित करता रहता है प्रति समय. उपयोगवान का है तो उपयोगवान को कभी छोड़ता नहीं है, वो नहीं छोड़ता है, इसलिए उसको बोला जाता है कि वो स्व प्रकाशक है. पर प्रकाशक का ज्ञेय तो स्वभाव सिद्ध किया ना, वो तो प्रति समय वो परिणमन होता है ना, उसका परिणमन होता है तो दूसरे समय यही होता है. तो जो उत्पाद हुआ और दूसरे समय यही हुआ, उसके बीच में जो हुआ ज्ञानत्व और ज्ञेयत्व वो स्वपर प्रकाशक है. ध्रुव सामान्य और ध्रुव विशेष, इनमें ध्रुव विशेष में क्या लेना और उसका क्या काम है. ध्रुव विशेष से अनंत गुण की अनंत कारण सूत्र पर्याय लेना, और उसका क्या काम है, उसका मतलब ये है कि वो सभी कारण सूत्र पर्याय में एक ज्ञान उपयोग और एक दर्शन उपयोग त्रिकाल है, उसमें जानना देखना अनादि से चल रहा है, वो चल रहा है, वहां से ही सामान्य उपयोग प्रकट होता है, इसलिए उसकी जरूरत है.
और ऐसा स्वभाव है। आचार्य भगवान ने नियम सार की 15वीं गाथा में ये बात करी है। किसी को ज्यादा समझना हो तो कारण सूत्र पर्याय की नियम सार की 15वीं गाथा का प्रवचन गुरुदेव का सुन ले, और अपना ये गुरु कान दृष्टिमान 6वां भाग बाहर निकला है, उसमें कारण सूत्र पर्याय के सब प्रवचन छपे हैं, तो उसमें ज्यादा विषय के लिए वो पढ़ लेना। अनुभूति में उसकी क्या भूमिका है? अनुभूति में उसकी ये भूमिका है कि अनुभूति करने से पहले उसको ऐसा स्वभाव ख्याल में आ जाता है तो सहज में ही अनुभूति हो जाती है। ध्रुव विशेष में और कारण सूत्र पर्याय में क्या अंतर है? वो एक ही है। ध्रुव विशेष और सामान्य उपयोग में क्या अंतर है? ध्रुव विशेष कारण सूत्र पर्याय है, वो ध्रुव कुटस्थ है। सामान्य उपयोग है, वो उत्पाद वाला परिणमता है। वही वो उपयोग है, सामान्य उपयोग, वो उत्पाद वाला है, वो क्रियाशील है, वो निष्क्रिय नहीं, वो क्रियाशील है। उसमें क्रिया चलती है, ज्ञान क्रिया चलती है। वो ज्ञान क्रिया वाला उपयोग है, उसी में ही कार्य होता है, उसी में ही सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। वो ज्ञान क्रिया वाला उपयोग है, वो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा बाल गोपाल सबको अनुभव में आ रहा है, उसी का नाम ज्ञान क्रिया वाला सामान्य उपयोग है। और वही सामान्य उपयोग कन्वर्ट होके उसी समय में विशेष रूप कन्वर्ट होता है तो सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति है। उसको बोला जाता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक ज्ञान। समयवर्ती है, पर्याय सब समयवर्ती है। उत्पाद है वो समयवर्ती है। पर्याय बोलो, उत्पाद बोलो, उपयोग बोलो, जो भी बोलो, कोई भी पर्याय बोलो, एक समय की है। आगे पीछे की पर्याय के साथ उसको कोई संबंध है ही नहीं। अभी रात की पर्याय हुई तो दूसरे समय में विपरागता की पर्याय हो सकती है। एक पर्याय को दूसरी पर्याय के साथ स्पर्श की संबंध नहीं है, क्योंकि ऐसा संबंध होए तो कभी कोई चीज सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर सके, क्योंकि रात तो अनादि से है, मिथ्या तो अनादि से है, तो कब जाएगा वो? तो वो समयवर्ती है, उसका न्याय। एक पर्याय को दूसरी पर्याय की अपेक्षा नहीं। कोई क्रिया बोला, क्रिया बोला ना, वो ज्ञेय का प्रकरण जो चला ना, वो ज्ञेयत्व स्वभाव का वही रस है। लेंगे, कल भी लेंगे। काले सवारे नहीं लिए, काले बपोरे राखते, काले बपोरे 4 वागे, काले 4 થી 5 सवारे नहीं, काले આજે રાતે નથી ना, आज रात।